Welcome everyone. Today I am here again with exercise 6.1. Chapter is lines and angles, and we are discussing the topics related to ninth class. Okay. So question number 1 and 2 we have already discussed in the previous video. Now question number 3 is there. Just have a look what the question is saying. Given is the diagram. In your book this diagram is given to you, and what is given to you that PQR is equals to PRQ, means these two angles are equal. It is given to you, and what you have to prove, PQS is equals to PRT, means PQS, that one, and PRT, these two angles are equal, that you have to prove. Now just see how we will do it. Okay, so first of all we will write what is given. Okay, just see the solution. First of all we will write what is given to us. So what is given to us? Angle PQR is equals to angle PRQ. It is given to us. Okay, now what we have to prove? So what we have to prove? We have to prove that angle PQS is equals to angle PRT. Okay, now we will prove it. So proof is there. So how we will prove it? Just see first of all, if you see this point Q, so these two angles, these are the linear pair. Okay, at a single point a ray is going there and sum of these two angles is 180. Same for this point also. So we will write it. What we will write? That angle PQS plus angle PQR, it is 180. And I have told you that you have to write the reason. So reason is linear pair axiom. Reason क्या है इसका? Linear pair axiom. Okay, if it is not visible, just write here axiom. Again, what you will write? Again you will write that angle PRT plus angle PRQ, it is also equals to 180 degree, and the reason is same reason is there from linear pair axiom. What is linear pair axiom? In the introductory video I have explained you. Okay, now see, we are getting these three equations. We will put this as equation first and that one as equation second. Now see, in these both equation, दोनों equation में आप देखिए right hand side equal है, then you can put left hand side also as equal. So what we will write? From equation 1 and 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? एंगल PQS प्लस एंगल PQR, ये किसके इक्वल है? एंगल PRT प्लस एंगल PRQ. ठीक है, अब हमें क्या दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, हमें दिया है PQR और PRQ इक्वल है. PQR और PRQ इक्वल है, यानी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो. तो अब हमने क्या लिख दिया? एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PQR. वाई? बिकॉज आपको क्या दे रखा है? एंगल PQR किसके इक्वल है? एंगल PRQ. It is given to you. Okay, so दोनों सेम है, it will be cancel out, and what we are getting? Angle PQS is equals to angle PRT. So जो हमें प्रूफ करना था that we have gained, ये हमें मिल गया. So hence it is proved. Okay, so नहीं समझ में आया? Just see it again. ये आपको डायग्राम दे रखा है, इंटीरियर टू एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं. ठीक है, अब देखिए डायग्राम में देखो, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, दोनों का सम इक्वल है. जब एक पार्ट इक्वल है तो अदर पार्ट अपने आप इक्वल होगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. यस, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपको एंगल्स दे रखे हैं कि x और y का सम w प्लस z के सम के इक्वल है. Okay, what is given to you? X plus y is equals to w plus z. And what you have to prove? आपको prove करना है AOB is a line. Okay, now you can say, अरे दिख ही रहा है AOB सीधी लाइन है, but you have to prove it. आपको prove करना है.
ओके, ज्योमेट्रिकली यू हैव टू प्रूव। दिखने से कुछ नहीं होगा कि ये सिंगल लाइन है देन इट इज अ सिंगल लाइन, आपको क्या करना है, उसे प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। सो व्हाट इज गिवन टू अस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z, ये हमको दिया गया है। नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, AOB इज अ लाइन। अब देखो AOB लाइन है, लाइन है का क्या मीनिंग है कि उस पर कोई भी रे होती है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। मीन्स आपको क्या प्रूव करना है कि x प्लस वाई या w प्लस z इनका सम 180 है, दैट यू हैव टू प्रूव। ओके, नाउ जस्ट सी हाउ वी विल प्रूव इट। प्रूफ इज देयर। सबसे पहले O पॉइंट पे बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं कैसे हैं, कंप्लीट एंगल, मीन्स सबका सम कितना होता है, 360। ओके, सो व्हाट वी विल राइट, x प्लस वाई प्लस z, ओके यू कैन राइट इन सीक्वेंस ऑल्सो, w प्लस z इज 360 डिग्री। एंड रीजन आप क्या दोगे, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स, दिस यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा, अराउंड अ पॉइंट इज 360, दिस यू हैव टू राइट। ओके, अब आपको क्या दे दिया है, x प्लस वाई w प्लस z के इक्वल है। मीन्स अगर आप इसको एक मान लें एंड w प्लस z आप सेकेंड वन मान लें, अब देखो आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z, दिस इज गिवन टू यू। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, किसी के बदले भी किसी को लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया x प्लस वाई अगेन x प्लस वाई एंड किसके इक्वल है, 360। रीजन क्या है, बिकॉज पेयर इज इक्वल। अब देखो इसको ऐड कर लो, 2x प्लस 2y 360। ओके, नाउ 2 इज कॉमन, x प्लस y इज 360 एंड दिस implies what we are getting from it that x plus y आपका क्या हो जाएगा, 360 upon 2 and what we are getting, 180 degree. Okay, so from here x plus y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ x प्लस वाई आपका 180 डिग्री हो गया, दिस इम्प्लाइज आप इसके एंगल्स के नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, x कौन सा एंगल है, एंगल AOC प्लस एंगल COB किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ओके, नाउ जब एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो अभी कौन सी एक्सियोम है, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। आप क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिखेंगे एट द लास्ट, इस स्टेटमेंट के बाद आप लिखेंगे बाय कौन सी एक्सियोम है, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियोम व्हाट वी आर गेटिंग, दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इट इज प्रूफ, जो हमने प्रूफ करना था वो क्या हो गया, प्रूफ। ओके, आप कुछ भी इसे इंटरचेंज कर सकते हो, आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो और w प्लस z। ओके, क्योंकि एक साइड x प्लस वाई एंड सेकेंड साइड w प्लस z है, तो आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस डायग्राम इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज, आपको दिया है POQ इज अ लाइन, POQ आपको एक लाइन दे रखी है, OR एक रे है जो PQ की क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे साइन, ये 90 डिग्री है। अगर ROQ 90 डिग्री है तो ROP भी 90 डिग्री होगा। ओके, नाउ एक और रे है OS इन बिटवीन, जो कहाँ है, इन बिटवीन ऑफ व्हाट, OP एंड OR, जो OP और OR की क्या है, बीच में है। ठीक है, नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल ROS है, एंगल ROS दिस इन बिटवीन, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, जब हम QOS में से POS माइनस करते हैं और उसका हाफ करते हैं, उसके इक्वल है। ओके, सो जब भी हमें इस तरीके का प्रूफ करना होता है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ पार्ट, या तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं या RHS। ठीक है, मीन्स इस डायग्राम से हम QOS और POS फाइंड आउट कर लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें और वहां से हम ROS फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ओके, या हम इस डायग्राम से
ROS फाइंड आउट कर लें, वहाँ से इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट QoS एंड PoS. ओके, सो सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन टू यू. सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हमें क्या दिया गया है. गिवन टू अस दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. और इसका मीनिंग क्या है कि ROQ as well as angle ROP, these both are 90 डिग्री. जो भी हमें दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे ताकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QoS माइनस एंगल PoS. ओके, नाउ जस्ट सी प्रूफ इज देयर. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, QoS. सो जस्ट सी द डायग्राम. QoS मीन्स इन दोनों के सम के इक्वल है. सो एंगल QOR प्लस एंगल ROS. फिर हम फाइंड आउट करेंगे PoS. अब PoS देखो ये वाला, जब हम इस कंप्लीट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें PoS मिल जाएगा. मीन्स एंगल PoS हमको चाहिए तो POR में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल ROS. ठीक है, अब हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गई. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ हमें QoS में से PoS सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. ओके, इक्वेशन we will do the subtraction. Okay, subtracting equation 1 minus second. 1 में से हम सेकंड को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. ओके, सो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, देखो एंगल QoS माइनस एंगल PoS. और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एंगल QOR प्लस एंगल ROS. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन ब्रैकेट एंगल POR माइनस एंगल ROS. ओके, दिस वी आर गेटिंग. सो जस्ट सी, ये तो हमें मिल गया. हम इसको सॉल्व करेंगे. QOR, जो सी QOR, ठीक है, QOR क्या है हमारा 90. सो हम इसे रिप्लेस कर देंगे. एंगल ROS, ब्रैकेट ओपन करेंगे. POR, अगेन POR हमारा क्या है 90 और प्लस ROS. ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया और 90 डिग्री हमने रिप्लेस कर दिया. सो ये प्लस 90 एंड माइनस 90 ये आपका कट आउट हो गया. ROS प्लस ROS 2ROS. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल QoS माइनस एंगल PoS. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ROS चाहिए, तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, यहाँ से हमें ROS क्या मिल जाएगा, ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल PoS. ठीक है, सो दिस वी रिक्वायर्ड एंड नाउ दिस इज प्रूव्ड. सो हैंस प्रूव्ड. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. यस, नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है ZY XYZ. See it again, disturbance was there. Now see XYZ is 64 डिग्री. XY आपका प्रोड्यूस किया है पॉइंट P तक. आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ डायग्राम. इसके अलावा आपको दे रखा है YQ. ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को. मीन्स आपको सिर्फ इसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. विद द हेल्प ऑफ इट, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, XYZ 64 डिग्री. आपको एक एंगल दे रखा है XYZ. ओके, XYZ और ये आपको दे रखा है 64 डिग्री. नाउ XY को आपको एक्सटेंड करना है टू पॉइंट P पॉइंट तक. आपको इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है. और आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है. किस तरीके से, इफ YQ बाइसेक्ट ZYP मीन्स यहाँ पे एक रे और है जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, XYQ.
एक्स वाई क्यू मीन्स ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है। अगेन रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करके उसको 360 से माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ सी हाउ वी विल फाइंड इट आउट। सबसे पहले आप देखो, ये आपकी एक लाइन दे रखी है। ओके, सो एक्स वाई जेड और जेड वाई पी इन दोनों का सम क्या होगा 180। सबसे पहले सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, सो हम गिवन और टू प्रूफ कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज 180। ओके, नाउ ये आपको कितना दे दिया है 64। हमने यही दो एंगल क्यों लिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। सो एंगल जेड वाई पी यहाँ से क्या आ जाएगा 180 माइनस 64। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी आर गेटिंग 160 डिग्री। ठीक है, ये आ गया एंगल जेड वाई पी। अब हमें चाहिए क्यू वाई पी। सो ये रे इन दोनों को क्या कर रही है, सब्ट्रैक्ट कर रही है, सॉरी बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, सो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। सो आप क्या लिखेंगे, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। सो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 116 डिग्री। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी आर गेटिंग 58 डिग्री। ठीक है, सो ये एंगल तो आपको फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू तो 64 प्लस 58। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। सो दोनों एंगल हमारे पास हैं। एक एंगल आपको 64 एंड सेकेंड एंगल आपको क्या दे रखा है 58। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी आर गेटिंग 112 डिग्री। सो एक एंगल तो हमारा फाइंड आउट हो गया एक्स वाई क्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। सो एंगल क्यू वाई पी तो हमारे पास क्या है 58। अब हमें क्या बताए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या होता है, जब हम 360 में से क्यू वाई पी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस क्यू वाई पी। जब हम 360 में से क्यू वाई पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आपका क्या हो जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री। सो इट इज 302 degree. So these two are your answer for this question. Okay. So by this question we have completed our exercise 6.1. Okay. For any difficulty you can comment it.